ઓમ શાંતિ. આજે 13/5/2021 બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। તો બાબા કહે છે તમે કોણ છો? તો બાબા આપણો પરિચય આપે છે કે તમે અત્યારે બ્રહ્મા મુખ વંશાવલી બ્રાહ્મણ છો અને પરમાત્મા પાસેથી જ્યારે બ્રાહ્મણ બન્યા તો પરમાત્માએ પિતાએ આપણને જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર આપ્યું છે અને આપણે અત્યારે પરમાત્માની ગોદીમાં બેઠા છીએ. प्रश्न, अद्वैत राज्य जहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत माना જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો બીજો મત નથી, કે જે દુનિયા કે જ્યાં એક મત, એક ધર્મ, એક ભાષા, એક રાજ્ય છે, જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારની દ્વૈત ભાવના, મને લડાઈ ઝઘડાની કે અલગ અલગ મતભેદવાળી ભાવના નથી, તો એવી દુનિયાની સ્થાપનાનો આધાર કયો છે? તો ઉત્તર યોગબલ. કયો આધાર છે સ્થાપનાનો આધાર? યોગબલ. તો સતયુગી દુનિયાની સ્થાપનાનો આધાર છે યોગબલ. बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना नहीं हो सकती. शारीरिक बाहुबल द्वारा सतयुगी दुनिया की कोई स्थापना થઈ सकती नहीं. वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है. અત્યારે સૌથી શક્તિશાળી કોઈ ધર્મ હોય તો એ છે ક્રિશ્ચન ધર્મ, કારણ કે સૌથી વધુ સંખ્યા જો કોઈ ધર્મની હોય તો એ ક્રિશ્ચન ધર્મની છે. તો બાબા કે છે અગર ક્રિશ્ચન ધર્મના લોકો બધા એક સાથે મળી જાય ને તો આખા વિશ્વ પર એમનું રાજ્ય થઈ જાય, પરંતુ કાયદો જ નથી, સૃષ્ટિ ચક્રનો નિયમ જ નથી કે ક્રિશ્ચન ધર્મનું રાજ્ય આવે. રાજ્ય તો કોનું આવશે? આદિ સનાતન દેવી દેવતા ધર્મનું. विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का काम है. तो विश्व पर एक राज्यની સ્થાપના કરવી એ પરમાત્માનું કાર્ય છે અને વર્તમાન સમયે પરમાત્મા આ કાર્ય કરી રહ્યા છે. ગીત છે છોડ भी दे आकाश सिंहासन और कहा आजा धरती पे आजा. तो परमात्मा ने हर एक आत्माओं प्रार्थना करे छे, हे प्रभु पिता परमात्मा आकाश सिंहासन छोड़ी माना परम धाम छोड़ीने आ सृष्टि पर आओ. ओम शांति. बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है. ओम यानी मैं कौन? तो मैं आत्मा. ओमનો અર્થ શું થાય છે? હું, मैं. तो हूँ कौन? हूँ आत्मा. यह शरीर हमारे ऑर्गन्स है. मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ. भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्मग्लानि દુઃખો પડા હે. કહેવાય છે કે જ્યારે સૃષ્ટિ પર દુઃખ અને અધર્મ ફેલાય છે ત્યારે મનુષ્ય આત્માઓ પરમાત્માને પુકારે છે કે હે દૂર દેશના રહેવાવાળા, તો દૂર દેશમાંના પરમધામના રહેવાવાળા, હવે આવો અને અમને દુઃખોમાંથી મુક્ત કરો. આપ ફિર સે આકર ગીતા કા ઉપદેશ સુનાઓ. गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए,
क्योंकि वह सबका बाप है। કોને બોલાવીએ છે? શિવ બાબાને કે હે શિવ બાબા આવો, હે નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્મા આવો, કારણ કે એ સર્વ મનુષ્ય આત્માઓના પિતા છે। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है। કોનો પડછાયો પડે છે ભારતવાસીઓ પર? माया रावण नो। तो माया रूपी रावण का परछाया पड़ा है, इसीलिए सब दुखी पतित है। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए। પરમાત્માને શું કહે છે? કઈ રીતે આવો? રૂપ બદલી। કારણ કે પરમાત્માનું જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે તેજોમય જ્યોત સ્વરૂપ, તો એ સ્વરૂપે અગર પરમાત્મા આવે તો કોઈ ઓળખી ના શકે, કોઈ જોઈ ના શકે, એટલા માટે કે છે રૂપ બદલ કર આઈએ। अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य के रूप में आता हूँ ना, माटे तो परमात्मा मनुष्य तननो आधार लई दिव्य अवतरित थईने आवे छे। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। परमात्माનું આ સૃષ્ટિ પર આવવું કેવું છે? દિવ્ય અલૌકિક। દિવ્ય અલૌકિકમાંના પરમાત્મા કોઈ મનુષ્ય શરીરના કોઈ માતાના ગર્ભમાં આવીને જન્મ નથી લેતા, પરંતુ એ દિવ્ય અવતરિત થઈને આવે છે, પરકાયા પ્રવેશ કરે છે, માટે એમના આવવાનું બાબા કહે છે કેવું છે? દિવ્ય અલૌકિક છે। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकार रूप बदल कर आता हूँ। बाबा हर 5000 वर्षનું ચક્ર પૂરું થાય ત્યારે આ સૃષ્ટિ પર આવે છે, પરંતુ કઈ રીતે? પોતાનું જે ઓરિજિનલ નિરાકારી સ્વરૂપ છે એ બદલીને આવે છે। જ્ઞાન का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है, कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। कृष्णने શું ના કહી શકે? તો શ્રી કૃષ્ણને જ્ઞાનના સાગર ક્યારે પણ કહી શકાતા નથી। बाप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। परमात्मा सृष्टि पर क्यारे आवे छे? જ્યારે આ દુનિયા પતિત બની જાય છે ત્યારે પરમપિતા પરમાત્મા આ સૃષ્ટિ પર આવે છે। कलयुग से सतयुग बनाने में आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। त्रिमूर्तिનું चित्र જોયું છે ને? પહેલા બ્રહ્મા બતાવે છે, વિષ્ણુ છે, પછી શંકરજી છે। તો બ્રહ્મા દ્વારા સ્થાપના, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। पहला परमात्मा कलयुग अंत में प्रजापिता ब्रह्माना तन में दिव्य अवतरित थईने आवे छे अने ब्रह्मा द्वारा नवी सत्युगी दुनिया में लई जवा माटे मनुष्य आत्माओने तैयार करावे छे। तो सौथी पहला स्थापनाનું કાર્ય થાય છે અને જેવું સ્થાપનાના કાર્યની તૈયારીઓ પૂરી થઈ જાય પછી શંકર દ્વારા વિનાશનું કાર્ય થાય છે અને પછી જે સતયુગી દુનિયા તૈયાર થયેલી આવે છે એમાં વિષ્ણુ ચતુર્ભુજ દ્વારા પાલનાનું કાર્ય થતું હોય છે। यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम गुरु भी है। शिव बाबा कौन छे? अपना परम पिता भी छे, परम शिक्षक भी छे, तो परम सद्गुरु भी छे।
और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। यह तो बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। अपना शरीરના પિતા હોય શું કરે? ઘરમાં પાલના કરે અને જ્ઞાન મેળવવા, શિક્ષણ મેળવવા માટે સ્કૂલમાં મોકલી દે। कोई बिरला होगा जो बाप टीचर दोनों होगा। कोई एवा माता पिता छे कि जे घરમાં पालना भी करे छे तो साथे साथे स्कूल में शिक्षक बनीने भणावे भी छे। यह कोई कह न सके सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती हैं, तो वह आत्मा का फादर हो गया। यह गीता भी भक्ति मार्ग का है। गीता भी शू छे? भक्ति मार्ग की सामग्री छे। सतयुग में तो माया होती ही नहीं जो पुकार ना पड़े। सतयुग में माया होती ज नहीं कि भगवान ने बोलावा पड़े कि हे भगवान हवे आओ ने अमने माया रावणनी जंजीरों मांथी मुक्त करो। वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। कौन छो? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। रात दिन माना स्थूल आ सृष्टिना रात दिवसनी वात नहीं करता बाबा। सृष्टि चक्रना रात दिवसनी वात करे छे कि ज्यारे सतयुग त्रेता होय छे त्यारे सृष्टि चक्र उपर अजवाळुं होय छे, दिवस होय छे अने द्वापर कलयुग माना विकारो रूपी अंधकार सृष्टि पर छवाई जाय छे तो एने कहेवाय छे रात्रि। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो दिन उदय होता है। यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा, ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसी को भी होता नहीं है। इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है कोई के पास? तो बाबा कहे छे वर्तमान समय तमे ब्राह्मण आत्माओं पुरुषार्थ करीने सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मेळवવાનો पुरुषार्थ करी રહ્યા છો। પછી સતયુગ ત્રેતા પૂરું થશે અને सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य भोगवी પછી राज्य गवाओ છો। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि, शिव रात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अथवा शिव का रीइंकार्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। परमात्मा शिव
કે જે પરમાત્મા શિવ દ્વારા આપણે સત્યુગી દુનિયામાં રાજ્ય ભાગ્ય મેળવી શકીએ છીએ. એમના દ્વારા જે જ્ઞાન મળે છે તો જ્ઞાન દ્વારા આપણા જીવનને ઊંચું બનાવીએ છીએ. તો એવા પરમપિતા પરમાત્માનો દિવસ તો એક દિવસ નહીં परंतु 1 महीनों मनावो જોઈએ. जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते. એ દિવસે શિવરાત્રી આ તો અમુક જગ્યાએ રજા તરીકે શિવરાત્રીનો તહેવાર જાહેર કરવામાં આવે છે, પરંતુ અમુક જગ્યાએ તો એની જાહેર રજાનો તહેવાર બી નથી માનતા. ભલે સ્કૂલોમાં ગવર્મેન્ટે જાહેર રજા તરીકે શિવરાત્રીનો દિવસ જાહેર કર્યો છે, પણ નોકરી ધંધાવાળા રજા રાખે છે નહીં. તો જે આપણી સમગ્ર સૃષ્ટિને પતિતમાંથી પાવન બનાવે છે, તો એવા પિતાનો જન્મદિવસ બી આપણે રજા નથી રાખી શકતા. બાપ કહતે हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ. अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का. कयो पुरुषार्थ करो છો? राजयोग सीखवानो. बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं. आत्मा का रूप क्या है यह किसी को पता नहीं है. बाप कहते हैं तुम आत्मा न अंगुष्ठे मिसल हो न अखंड ज्योति मिसल हो, तुम तो स्टार हो बिंदी मिसल. बाबा આપણી આત્માનો પરિચય આપે છે અને એ દ્વારા જ્ઞાનનું ત્રીજું નેત્ર આપણને મળે છે કે આપણી આત્માનું રૂપ કેવું છે. તો બાબા કહે છે આત્મા કોઈ અંગુષ્ઠા જેવી કે અખંડ જ્યોતિ જેવી નથી, પર આત્મા તો કેવી છે? तुम तो स्टार मिसल बिंदी जेवी छे. मैं भी आत्मा बिंदी हूँ. जेवी रीते आत्मा भी बिंदी जेवी छे, एवी रीते निराकार परम पिता परमात्मा शिव भी बिंदी समान छे. परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ. आत्मा भले बिंदी समान छे, परमात्मा भी बिंदी समान छे, પરંતુ આત્મા પુનર્જન્મમાં આવે છે, પરમાત્મા પુનર્જન્મમાં આવતા નથી. मेरी महिमा ही अलग है. मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता. तुम आत्माए शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो. मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ. यह लोन लिया हुआ शरीर है. बाबा कहे छे कि तमे आत्माओ शरीर में आओ छो, 84 जन्म धारण करो छो. हूँ तो आ जन्म मरणना चक्र थी न्यारो छू, कारण के हूँ सुप्रीम परम आत्मा छू. परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है. પોતાની જાતની આત્મ અનુભૂતિ નથી કરતા કે આપણે કોણ છીએ, આપણે આત્મા છીએ. आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं. हे भगवान, हे रहम दिल बाबा रहम करो. दुख पड़े तो व्यक्ति भगवान ने याद करे छे. हे भगवान, हे रहम दिल बाबा रहम करो. रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है. रहम दया मांगीए छे तो केम? कारण कि ए परम पिता परमात्मा ज्ञानना सागर, दयाना सागर, पवित्रताना सागर छे. अने ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है. मनुष्य को यह महिमा दे नहीं सकते. कई महिमा मनुष्य ने आपी शकता नहीं. ज्ञानना सागर, दयाना सागर, पवित्रताना सागर, आ कोई महिमा कोई व्यक्ति ने आपणे आपी शकता नहीं. सारी दुनिया पर ब्लिस करना यह बाप का ही काम है.
સૃષ્ટિમાં જેટલી પણ મનુષ્ય આત્માઓ છે, તો આ સૃષ્ટિ રૂપી રંગમંચ પર મનુષ્ય આત્માઓ પર દયા કરવી, રહમ કરવી એ કોઈ વ્યક્તિ કામ ના કરી શકે. એ કામ તો એક પરમાત્માનું છે. वह है रचेता, बाकी सब है रचना. क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं. पहले स्त्री को एडाप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते. यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं. आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं. सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं. फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है, तब राजाई होती है. શું કરે છે? અલગ અલગ ધર્મના લોકો, તો અલગ અલગ ધર્મના લોકો પહેલા પોતાના ધર્મની સ્થાપના કરે છે અને સ્થાપના કરી અને વ્યક્તિઓને પોતાના ધર્મમાં જોડવાનું કાર્ય કરે છે. અને જ્યારે એ ધર્મની સંખ્યા લાખો કરોડોની અંદાજમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય પછી રાજાઈ થતી હોય છે. અભી तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो. योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो. बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता. योग बल द्वारा આપણે વિશ્વ પર રાજ્ય કરીએ છીએ. બાહુબલથી કોઈ વિશ્વ પર રાજ્ય થઈ શકતું નથી. यह लॉ ही नहीं कहता, ये कायदो ज नहीं. ड्रामा में यह कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने. बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है. विश्वनी बादशाही कई रीते मळशे? योग बल द्वारा, परमात्मा द्वारा ज मળી શકે છે. वहां कोई पार्टीशन नहीं है. धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे. तुमको कोई टच नहीं कर सकता. उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य. यहाँ है अनेक राज्य. सतयुगમાં એક રાજ્ય છે કે જ્યાં કોઈ પાર્ટીશન નથી, કે કોઈ સીમાઓ બાંધેલી હોય કે આટલું તમારું, આટલું તમારું, આટલું તમારું. ત્યાં બધું જ આપણું હશે અને કોઈ આપણનો સ્પર્શ બી નહીં કરી શકે. તો બાબા કહે છે એ અદ્વૈત રાજ્યમાં હું તમને લઈ જવા આવ્યો છું. અને એ દુનિયામાં જવું હોય તો મુખ્ય આધાર છે યોગ બલ. बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह राजयोग सिखाता हूं. कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है. कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था. वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं. કૃષ્ણ શું હતા? સતયુગ આદિમાં પહેલા નંબરના જન્મની અંદર એમનો જન્મ શ્રી કૃષ્ણના રૂપે હતો. અત્યારે 84 જન્મો લેતા લેતા હવે અંતમાં આવીને બ્રહ્મા બન્યા છે. यह बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है. बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं. अनेक धर्म विनाश होने हैं. जरूर बाबा एक सत धर्मनी स्थापना करवा आवे छे, तो अनेक धर्मोनो विनाश थशे तो एक धर्मनी स्थापना थशे. तो एक धर्म की स्थापना हो जाएगी. भारत ही 100% साल्वंट धर्म श्रेष्ठ था. भारत दुनिया केवी हती? सतयुगमां 100% साल्वेंट, माना 100% निर्विकारी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया हती.
ત્યાં धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ હતો। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। देवताओं की महिमा कई छे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। तो आ देवी देवताओं की महिमा छे। तो पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। सतयुग में हरेक देवताओं पवित्र हता। जेम जेम जन्म लेता लेता नीचे आवे तो पतित बन्या। हवे परमात्मा आवीने फरीथी पावन बनावे छे। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं है। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। 5000 वर्ष पहला पण परमात्मा आ सृष्टि पर आव्या था अने परमात्माए आवीने हरेक व्यक्ति पासे प्रतिज्ञा करी थी कि पुरुष अने स्त्री बधा ज पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तुम्हारे लिए है ना। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो संगम युग दरमियान આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ। તો જે સૌથી વધુ જ્ઞાન ધારણ કરે છે એ સતયુગમાં દેવી દેવતા બને છે। પણ જેવી ભક્તિ માર્ગની શરૂઆત થાય છે તો જેમને સતયુગ સંગમમાં જ્ઞાન લીધું હતું, સતયુગમાં દેવતાઓ બન્યા હતા, એ જ આત્માઓ ભક્તિ માર્ગ દરમિયાન સૌથી વધુ ભક્તિ કરે છે અને ભક્તિનું ફળ જ્ઞાન મળે છે અને જ્ઞાન મળ્યા પછી બેહદનો વૈરાગ્ય આવી જાય છે। तो बाबा कहते ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यह तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ देखते नहीं है। क्रिश्चियन धर्मनी आ वात छे कि क्रिश्चियन धर्मनी अंदर जे पादरी लोग होय छे ए चालता होय तो एमनी नजर सीधी होय, आजूबाजू क्यांय साइड सीन जोता नहीं होता। नंस होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती है। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। नंस एटले के जे क्रिश्चियन धर्मनी अंदर साध्वी बने तो एने नंस कहेवाय छे। आम साध्वी होय, जे सन्यासी होय तो घर बार छोड्યું होय, परंतु क्रिश्चियन धर्म में आ रीते घर परिवार छोड़ीने जे आवे एने नंस कहेवातुं होय छे। तो ए बी क्राइस्ट ने याद करे छे, कहे छे कि क्राइस्ट परमात्मानो बाळक हतुं। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। तुम तो आत्मा हो, नन बट वन। कोई नहीं परंतु एक। આપણે શું કરવાનું છે? એક પરમાત્માને યાદ કરવાના છે, બાકી કોઈને પણ નહીં। सच्ची नंस तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाप से मिलना है। उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहे छे साचा नंस माना साची साध्वी तो तमे छो, कारण के सो बेहदना वैरागी बनी गया छो। भले घर गृहस्थ मारो छो परंतु बेहदनो वैराग्य छे। तो बाबा कहते हैं वर्षा तुमको मिलना है तो उस बाबा को याद करो तब ही विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए बाप का फरमान है माँ में कम याद करो। तो परमात्मानो आदेश शुं छे? जेटलू बने एटलू मने याद करो। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती है। गॉड कौन है यह नहीं जानती। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं
वही नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़ी ही है, न वह त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। त्रिकालदर्शी कौन છે? तो बाबा કહે છે त्रिकालदर्शी તમે ब्राह्मण છો। तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। क्या बैठा છો? परमात्मानी गोदी में। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो। આપણે શું કરી રહ્યા છે અત્યારે? ખાસ ભારતવાસીઓની અને આમ દુનિયાની સેવા કરી રહ્યા છે। बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर्स, तुम हो रूहानी। दुनियानी अंदर घणाए सामाजिक कार्य करो छे, परंतु तमे केवा छो? ए सामाजिक कार्य करता शरीरधारीओनी मदद करे छे, शरीरधारीओनी सेवा करे छे। आपणे आत्मानी सेवा करीए छे। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। तो मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। શું થવાનું છે? મૃત્યુલોક मुर्दाबाद, अमरलोक जिंदाबाद। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाबा अमर कथा केम संभळावे छे? तो अमर बाबा आवीने अपने सर्व आत्माओं ने अमर युग माना सत्युगी दुनिया। तो सत्युगी दुनिया ने अमर युग केम कह्यु? कारण के त्या कोई अकाले मृत्यु होती नहीं। बाप कहते हैं, अच्छा और सब बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। बाबा कहे छे बधी वातो भले भूली जाओ चालशे, परंतु पोताने आत्मा समझो अने मने याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप देते हैं। यह है खेल, भारत की ही कहानी है। यह बातें बाप ही समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्रों आदि में नहीं है। इसीलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। परमात्मा ने शू कह्या? ज्ञानना सागर, शांतिना सागर, दयाना सागर। तुम भी आप समान बनाते हो। बाबा आपने भी एमना जीवा बनावे छे। ज्ञानना सागर, आनंदना सागर, शांतिना सागर। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। यह भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वह प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वह राजाई में आएंगे।
બાબાએ શું કહ્યું? જે થોડું ઘણું જ્ઞાન લે છે એ ક્યાં જશે? પ્રજામાં ચાલે જશે. અને જે સારી રીતે જ્ઞાન લે બી છે અને બીજાને આપે બી છે તો એ ક્યાં જશે? રાજાઈમાં આવશે. प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होंगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों ईश्वर के पास नहीं है? ક્યાં? બાબા કહે છે ભક્તિ માર્ગમાં બી ઈશ્વર અર્થ દાન પુણ્ય કરતા રહેતા હોય છે, તો શું ભગવાન પાસે નથી? અને ભગવાનને એ સ્થૂળ ધનની જરૂર છે તો ઈશ્વર અર્થ દાન કરે છે. યા તો કહતે હૈ કૃષ્ણ અર્પણમ, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। भले ईश्वर अर्थ दान पुण्य करे छे तो ए दान पुण्यનું ફળ બીજા જન્મમાં પ્રાપ્ત કરે છે, एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। बाबा કહે છે આ એક સંગમ યુગ દરમિયાન તમે મારા માટે થઈને ઈશ્વરીય કાર્યમાં કંઈ બી કરો છો તો એ જે વસ્તુ ડાયરેક્ટ કરો છો તો એ વસ્તુની પ્રાપ્તિ તમને 21 જન્મો માટે થઈ જાય છે। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसीलिए इसको सफल कर लो। तो बाबा કહે છે આ બધું જ માટીમાં મળી જવાનું છે, એટલા માટે હવે સમય પહેલા સફળ કર લો। तुम यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहाँ से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। योग थी हेल्थ माना तंदुरस्ती मळे छे અને ચક્રને જાણીએ છીએ સૃષ્ટિ ચક્રને તો આપણને વેલ્થ માના સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहाँ बहुत आ सके बोर्ड पर लिख दो। જેટલા કોઈ મોટો વ્યક્તિ હોય તો બાબા કહે છે મોટી હોસ્પિટલ ખોલો, મને સેન્ટર ખોલો કે જ્યાં ઘણા લોકો આવી શકે અને આગળ મોટું બોર્ડ લગાવી દો કે રૂહાની યુનિવર્સિટી કમ હોસ્પિટલ, જ્ઞાન બી લો અને તંદુરસ્તી બી મેળવો। जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं ना, જેવી રીતે नेचर क्योर माना ब्यूटी पार्लर वाला होय तो એ કેવી રીતે બોર્ડ ઉપર લખતા હોય, કેટલું સરસ મજાનું બોર્ડ બનાવતા હોય। तो बाप तो सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बनाते हैं। तो बाबा तो आखी दुनियाने सुंदर बनावा આવ્યા છે। तो જ્યાં પરમાત્માનું કાર્ય છે દુનિયાને સુંદર બનાવવાનું, ત્યાં બોર્ડ ઉપર લખી દો इस समय सभी इम्प्योर है। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। केवा छो? मोस्ट मानस सौथी वधारे में वधारे। बाबा कहे छे स्वीट प्यारा बाळको छो बाबाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। આપણું આ જીવન છે એ ઈશ્વરીય સેવામાં લગાવો। ખાસ ભારત આમ સારી दुनिया की सेवा करनी है। ખાસ ભારતની અને દુનિયાની તો કરવાની છે, પણ મેન ભારતની સેવા કરવાની છે। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। આપણું બધું જ સફળ કરવા માટે તન, મન, ધન, સમય, સંકલ્પ, શ્વાસ આ બધું જ સફળ કરવાનું છે। તો એના માટે ડાયરેક્ટ પરમાત્મા અર્થ ઈશ્વરીય સેવામાં અર્પણ કરો। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। तो संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो। બાબાએ સંપૂર્ણ સમર્પણની વ્યાખ્યા કહી આપી કે જેના સંકલ્પ માત્રમાં બી આ શરીરનું ભાન ન હોય, संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति होय। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। सर्व गुणों में संपन्न कौन बनी शके? जे संपूर्ण समर्पण करे। અને સંપૂર્ણ સમર્પણ કોને કહેવાય? બાબાએ કહ્યું કે જે દેહનું ભાન भी પરમાત્મા આગળ અર્પણ કરી દે છે। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। तो बाबा एवा जे संपूर्ण समर्पण करे छे अने ए सर्वगुण संपन्न अने संपूर्ण बनवानो जे लक्ष्य राखे छे, तो एवा पुरुषार्थी बाळको बाबा सदा विजयी भवनु वरदान आपे छे। स्लोगन, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन को वश में करना, मन एक घोड़ा समान छे, चंचल बाळकना जेवुं छे, वांदरा जेवुं छे, कुदाकुद कर्या करे। तो बाबा के छे मन ने कंट्रोल में राखो, आत्मा ने राजा बनाओ अने मन ने कंट्रोल करो। तो जे मन मना भवनी स्थिति छे, परमात्मा ने याद करवानी, तो ए स्थिति सहज बनी जशे। अच्छा, ओम शांति।